most of the students have text related to application writing. They were having the concern, they were having the question that in our college, our teachers are going for this pattern, and we have gone for some another pattern. So I'm also class searching for the copies of the toppers that is proposed and issued by your board. Along with that, the main difference between application writing and yes, ma'am, pattern is different in college for report and application. Yes, I know that. I know that. But the easiest, proof, or you can say the easiest solution that I can give is that I would be giving you the proposed pattern of your board by your board. उन्होंने एक पैटर्न इशू किया है जहां इन्होंने उन्होंने रिपोर्ट राइटिंग का एक जो है ना वो सोल्यूशन भी दिया है। ठीक है, और वो जो सोल्यूशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न दैट वी हैव डन related to report writing and application writing. I would be sharing it today in the group. ठीक है। Secondly, this application writing class, this is something that is different from your normal, or you can say the general applications in our daily life. That is not the type of the application which we write to our principal, or to our headmaster, or anything else. This is considered to be, specifically it is considered to be a job application, and for job application we are always having a CV writing. It is just a type of the CV writing where you do not mention anything related to your personal things, like you do not mention your name, you do not mention your, experience institution where you have got experience, or you do not mention anything that belongs to your personal information. But still it is different from general application. It is more associated to CV writing. सो सीवी राइटिंग आपकी बिल्कुल भी क्लास, अगर आप लोगों के कोई सिबलिंग्स हैं या आपके कोई कजन्स हैं उनके पास सीवी राइटिंग पड़ी होती है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। सीवी राइटिंग इज जस्ट लाइक, इट इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, first paragraph, second paragraph, third paragraph. It is a very short type of application where you talk about yourself कि जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कहाँ है, आपका नंबर कहाँ है, आपका एड्रेस कहाँ है। सो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सीवी राइटिंग। ठीक है। So the least that I can say is that I would be sending the PDF where the your board has basically posed a pattern, and along with that they have also given a solution to one of your report writing and this application writing. So that should clear your concerns. Otherwise, like the most of the students have sent me the application writing and report writing differently, and I'm teaching from the last 3 years the same pattern, and students are literally getting 95 and 97 with the same pattern. So I would not be suggesting you people कि आप जो है ना पैराग्राफ राइटिंग में एप्लीकेशन राइटिंग करें या रिपोर्ट राइटिंग कुछ डिफरेंट तरीके से करें, बिकॉज दिस इज द पैटर्न दैट वी हैव बीन फॉलोइंग। ठीक है, एंड आई विल बी सेंडिंग द proofs as well in the group. Okay class, so types of clauses, it is, we have covered noun clause and its different aspects. Today we are going to cover the remaining two types of clauses, that is adjective clause and adverbial clause. Let me, okay, तो मैम जो डिटेल्स देते हैं हम जॉब एप्लीकेशन में से पहले जो पैराग्राफ से लिखते हैं शॉर्ट, वो तो हर एप्लीकेशन में सेम, यस ठीक है, वो सेम ही होगा। बट नाउ सी ना, दिस इज देयर इज अ डिफरेंस, लाइक आप पैराग्राफ में नहीं लिख सकते कि आई हैव this qualification and I have done my bachelor's from this university. You cannot write this in a paragraph form in CV writing. सिंपली अगर आप गूगल करें, आप सीवी राइटिंग को कहीं भी सर्च करने, तो दैट वुड कम इन फ्रंट ऑफ यू, और वो वैसे ही होगा जैसे हमने एप्लीकेशन राइटिंग की है। ठीक है, सो वो एक पैराग्राफ आप लोगों ने लिखना है ऑफ कोर्स, बट वो जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है दैट यू शुड नॉट गिव दोज इंफॉर्मेशन इन अ paragraph form, and that is wrong. I would not be suggesting you people to go for that. Okay class, so adjective clause, what do you think about adjective? Let me know please.
Okay, class. So yes, it modifies a noun, of course. So class, adjective clause आपके पास, of course it would be a clause, means के ये आपको एक perfect sense देगा. Along with that, it would be now a group of words that would be acting as an adjective. ये ऐसे सिर्फ नहीं होगा कि जी he is a tall boy, you know, or she is a beautiful girl, or this tree is tall or big. ठीक है? So adjective clause is always, you know, the group of words which are modifying your noun or pronoun. Secondly, adjective clauses basically associate themselves with the usage of who, whom, whose, which, that, where, when, and why. Now, before asking and raising the question कि मैम ये सारे questions तो हमारे interrogative as interrogative questions used होते हैं, so how we can use them as an adjective clause? We will be seeing them, their usage in sentence form, where they will be acting as your adjective clause. But in order to the shortest, basically identification, the easiest identification of an adjective clause is that it always uses, or it always has the usage of these WH words, where they are being used as modifying the noun or pronoun. ठीक है? So how we can say that ये तमाम words जब आप कहीं आपके कहीं यूज होते हैं तो एडजेक्टिव कैसे वर्क, एडजेक्टिव क्लास के कैसे वर्क करते हैं, वो अभी हम देखने जा रहे हैं. सो लेट मी नो, मे आई रेज द व्हाइट बोर्ड प्लीज. Okay, so if the sentence is class, the boy who is standing there is my friend. Now the question arises. जी जी मरियम, मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेजेस के, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ. The boy who is standing there is my friend. Apparently class हमें कोई ऐसा एडजेक्टिव यहाँ नजर नहीं आ रहा. But as I have already discussed this thing that adjective clause is a group of words, ठीक है, which will be modifying your noun or pronoun. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि in this sentence the boy is your, you know, noun and acting as a subject. ये जो क्लास आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, who is standing there, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन कि मैम ये हमारा क्लॉज कैसे है. व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ क्लॉज, बिकॉज हु इज स्टैंडिंग देयर इज अ कंप्लीट सेंटेंस. It makes your questioning sentence, giving you a complete and perfect sense. Why we are saying that it is your adjective clause? Because these group of words are modifying your noun, modifying your subject basically. आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, आसान अल्फाज में आपको उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो जो लड़का जो वहां खड़ा हुआ है, ठीक है, इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है. सो दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम हु बेसिकली, ठीक है, दे आर एक्टिंग एज योर एडजेक्टिव क्लॉज. दोज वर्ड, यस. सो उसमें आपके पास फिर डिफरेंट यूसेज थी उसकी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यू नो सेंटेंस का सेंस देखे ना. अब सेकंड सेंटेंस में यू पीपल आर नॉट बीइंग टोल्ड अबाउट एनी एडजेक्टिव. ये हु वाज द मर्डर, दिस इज बेसिकली अ नाउन क्लॉज. नाउ यहाँ आपको कोई ऐसा सेंस नहीं दे रहा, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को बेसिकली मॉडिफाई नहीं करे. सो नाउ इन दिस सेंटेंस योर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हु वाज द मर्डर इज एक्टिंग एज योर नाउन क्लॉज. मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ.
ठीक है, समझ आ गई क्लास आप लोगों को? यस सलीम, आई हैव रिसीव्ड देम। ओके। ओके क्लास, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज हमारे हम देखते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास the one is restrictive adjective clause. For example, the book that I bought yesterday is very interesting. पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि what is meant by restrictive clause. ठीक है मरियम, हम टाइप्स के बाद आपके कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। सो व्हाट इज मेंट बाय रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज? क्लास लेट मी नो, बहुत डिटेल में हमने ये किए थे। ओके, अदर देन अलीम, व्हाट इज रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज? क्लास लेट मी नो। So restrictive clause is something that restricts your noun. It gives the essential meaning. Along with that, we do not have the usage of comma here. And if you try to remove that clause from your main sentence, so the sentence looks incomplete in some way. So the book that I bought yesterday is very interesting. ठीक है, इसमें that I bought yesterday, this is now your restrictive clause. रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये आपके बुक को मॉडिफाई करें, वो बुक्स जो मैंने कल ली थी, ठीक है, मतलब कि क्वालिटी दे रहे हैं ना कि वो बुक मैंने कल ली थी, ठीक है। तो ये जो आपके पास क्लॉज है नाउ, इट इज एक्टिंग एज रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। और अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आई कि मैम ये रिस्ट्रिक्टिव कैसे हुआ, तो इस क्लॉज को आप जो है ना इस सेंटेंस से थोड़ा सा रिमूव करने की ट्राई करें। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, विच बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, वी डू नॉट नो, वी आर नॉट गेटिंग द कंप्लीट सेंस until and unless we do not combine it here, ठीक है। सो नाउ ये जो दैट आई बॉट यस्टरडे है, ये आपका एजेक्टिव क्लॉज है। और कौन सा है? रिस्ट्रिक्टिव एजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये आपके सेंटेंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। समझ आ गई आप लोगों को? उसके ऑपोजिट क्लास आपका एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव एजेक्टिव क्लास था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि वी यूज कॉमर्स, और अगर हम उनको रिमूव भी करें तो सेंटेंस इज परफेक्ट। हु लिव्स इन इंडिया इज अ डॉक्टर। अब मुझे ये बताएं कि हु लिव्स इन इंडिया ये रिस्ट्रिक्टिव है या नॉन रिस्ट्रिक्टिव है? हु लिव्स इन इंडिया बेसिकली इट इज अ नॉन रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, बिकॉज वी आर यूजिंग कॉमर्स। अच्छा, अब ये जो हु लिव्स इन इंडिया है ना क्लास, ये आपको आपके ब्रदर को बेसिकली मॉडिफाई करें, उसकी तारीफ करें। एडजेक्टिव है ना, इन ग्रुप फॉर्म, इन क्लॉज फॉर्म, ठीक है। तो इसको अब आपके पेपर में ऐसे कभी भी नहीं आ सकता कि आपको ये सेंटेंस गिवन हो और आपको आपसे ये भी पूछें जी कि ये आइदर इट इज रिस्ट्रिक्टिव, नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। दोनों ऑप्शंस कभी भी नहीं आपके पेपर में आ सकते हैं। लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इसको हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, और आपके पास ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है। Why should we put comma? Because it is the rule related to non-restrictive adjective clause. और कॉमा की यूसेज हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर ये क्लॉज आप इस सेंटेंस से रिमूव कर लेते हैं तो सेंटेंस कंप्लीट होता है। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर।
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। यस ऑफ कोर्स। ठीक है, समझ आ गई क्लास आप लोगों को? Okay, and the last type of adjective clause is adjective clause with relative adverbs. ठीक है, relative adverbs वही where, when, why जो हमने फर्स्ट में इंट्रोड्यूस किए थे। फॉर एग्जाम्पल, डू यू रिमेम्बर द डे when we met? Question mark. This is the house where I was born. This is, तो फ्रेज और क्लॉज में तो डिफरेंस है ना। फ्रेज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। दिस इज द रीजन वाई यू आर लेट। हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस कर लेते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है क्लास, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज विद रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, जहां आपके रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेटिव मीन्स के सेंटेंसेस के मिड में यूज्ड होते हैं। When we met, डे, आपके डे को मॉडिफाई करें एज एन एडजेक्टिव। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज born, वेयर आपके हाउस को मॉडिफाई करें। एंड दिस इज द रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्लास, ये आपके पेपर में अक्सर आ जाता है और आपसे पूछते हैं कि विच क्लॉज इज दिस। ठीक है, सिर्फ वो क्लॉज का पूछते हैं, वो टाइप का नहीं पूछते। सो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें रीजनिंग दी हो, रीजनिंग गिवन हो, वो आपके एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ रीजन होते हैं या एडजेक्टिव क्लॉज विद रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई यू आर लेट। ठीक है, आपके रीजन को मॉडिफाई करें, व्हाई यू आर लेट। ठीक है, समझ आ गई है? Okay, so let us move towards some of the sentences. Please listen to the sentences carefully. The man who helped me is my teacher. Last sentence relative adverb of adjective clause with relative adverb है, relative adverb है इसमें why. The man who helped me is my teacher. Adjective clause बताना है क्लास आप लोगों ने। Who helped me? Okay, Aline, good. And what about others? The man who helped me is my teacher. You have to tell about the adjective clause कि इन sentences में adjective clause कौन सा है? Who helped me या सिर्फ who helped me is my teacher पूरा आएगा? सिर्फ आपका इंक्लूड होगा who helped me। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज the book that I bought last week is already lost. That I bought last week. ठीक है, so Aleem is the winner for this sentence. Faiza, you were first, but your answer was incomplete. The next sentence is आप लोगों ने मुझे बताना है कि is it a restrictive or non-restrictive adjective clause. So the first one is Ali, comma, who is my best friend, comma, plays cricket well. Non-restrictive, ठीक।
Non-restrict, Paisa, is it non-restrictive or restrictive? Okay, ठीक है Mariam, I am not receiving your answers. It is non-restrictive class. हम कॉमा की यूसेज करें ना. Ali, who is my best friend, is my friend. ठीक है. Okay, the next sentence is the house, comma, which has a red roof, comma, belongs to my uncle. एडजेक्टिव क्लॉज. ये मरियम का क्वेश्चन क्या है जी मैम? बट मैं तो आंसर्स दे रही. मरियम, आपके आंसर्स रिसीव नहीं हो रहे. ठीक है क्लास, नॉन रिस्ट्रिक्ट. अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है. ठीक है. द पार्क where we played cricket is very big. The park where we played cricket. Okay, Faisal is the winner where we played cricket. ठीक है जी, गुड. Can you explain the reason why he failed the exam? Can you explain the reason why he failed the exam? Okay, Hasnain is the winner. Why he failed the exam. पूरा पूरा आएगा. Okay. The last sentence for today is, do you remember the day when we first met? Do you remember the day when we first met? Okay, Aleem is the winner for this sentence. जी. Okay, class. So, any confusion now? Okay, so moving towards the very last type of our, it is similar to now. Ma'am, please एक दफा बोलना हो मुझे check. Okay जी. Let me entertain Mariam's confusion. और ये किसी और ने भी जो पूछा था, it is similar to noun clause. No, it is not. क्लास देखें, हम that की यूसेज करते हैं. ठीक है, that की यूसेज हमारी नाउन क्लॉज में भी थी और एडजेक्टिव क्लॉज में भी है. ठीक है. अब आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं, मैम आपको आंसर्स, अच्छा मुझे आपके आंसर्स रिसीव नहीं हुए. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेंटेंस इज दैट ही इज द विनर इज सर्टन. और एक और सेंटेंस में दैट की यूसेज अभी हमने की है कि आई हैव लॉस्ट द बुक दैट आई हैव bought yesterday. Now class, let me know कि ये जो that की यूसेज हम करें, that he is the winner और I have lost a book that I have bought yesterday. अब फर्स्ट सेंटेंस क्लास आप लोग देखें. फर्स्ट सेंटेंस में जो हम that की यूसेज कर रहे हैं, इसमें कहीं आपको एडजेक्टिव का सेंस मिल रहा है? किसी चीज की तारीफ हो रही है, किसी चीज को हम मॉडिफाई कर रहे हैं? नो, नहीं कर रहे. हम सिर्फ नाउन का बता रहे हैं कि वो जो है विनर है. ठीक है, वो यकीनन है. ये बात सच है. जो आपका सेकेंड सेंटेंस है क्लास, उसमें भी हम दैट की यूसेज करें, लेकिन नाउ वी आर यूजिंग इट, आर यूजिंग द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मॉडिफाई आवर बुक. आई हैव लॉस्ट अ बुक जो मैंने परसों ली थी. ठीक है, जो मैंने कल ली थी. सो दैट की यूसेज आपके नाउन क्लॉज में भी हो रही है, आपके एडजेक्टिव क्लॉज में भी हो रही है, बट द सेंस आर डिफरेंट. सेंस इज डिफरेंट बेसिकली. सब्जेक्ट भी तो नाउन ही है ना. कौन से सब्जेक्ट, कौन से सेंटेंस में मरियम आप बात कर रही हैं?
Most of the time they are like in the mid or at the end of the sentence. Ma'am, who is the murderer is still unknown. ये adjective clause हो गए. Who is the मैम आपने कहा है ही नाउन. फर्स्ट सेंटेंस में आप बात कर रही हैं. मरियम, that would be your noun clause. अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये ही हमारा सब्जेक्ट है और फिर आप विनर को देखें. विनर आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? मरियम, लेट मी नो कि विनर जो है आपके इस सेंटेंस में, बाकी भी बता सकते हैं कि विनर का जो वर्ड हम इस सेंटेंस में यूज करें, व्हाट इज इट, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस? ही इज द विनर. ऑब्जेक्ट है, नाउन है. ठीक है. सो आप लोग खुद ही बता रहे हैं कि ये आपके पास नाउन है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये भी आपके पास नाउन है? तो कहीं एडजेक्टिव यूज ही नहीं हो रहा. बेशक वो ही नाउन है, लेकिन वो विनर भी नाउन है. हम कोई एडजेक्टिव यूज ही नहीं करे इस सेंटेंस में. हाँ, सेकंड सेंटेंस में आपके जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हुए हैं, ये आपकी बुक को मॉडिफाई कर रहे हैं. ठीक है. आई होप लाइक इट इज क्लियर नाउ. Adverbial class. Let us move towards adverbial class. You have to basically be mindful of the definition of adverb. ठीक है. उसके सारे जितने भी टाइप्स हैं वो हम adverbial class में कवर करेंगे. So adverbial clause basically आपको क्या बताता है? What is basically the structure of adverbial clause, or how we can say that what is the definition of adverbial clause? Somehow it modifies your verb, adjective, another adverb. ठीक है. It tells us when, where, why, how, condition, concession, purpose, or result. For example, I will call you when I reach home. इस सेंटेंस में क्लास when I reach home is your adverbial clause. Adverbial clause of when I reach home. Adverbial clause of time. सेंस दे रहे हैं ना आपको कि मैं जब घर पहुंचूंगा. एक टाइम बता रहे हैं कि जी मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा. सो व्हेन आई रीच होम इज द एग्जाम्पल ऑफ योर एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम. समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है. ये आपको बेसिकली इसमें जो कंजंक्शन यूज हो रहे होते हैं वो कौन कौन से यूज हो रहे हैं, लेट मी टेल यू. एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम में कंजंक्शंस आपके यूज होते हैं व्हेन, व्हाइल, एज, आफ्टर, बिफोर, until, since, and whenever. ये कंजंक्शंस आपके एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम में यूज्ड होते हैं. व्हेन का हम इनके सेंटेंसेस भी कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल बेटर अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल, आई वेटेड फॉर यू until you
arrived. ठीक है, don't talk while I am speaking. I will text you before I leave. So can you people tell me that what are the examples of adverbial clause of time here? The first one, I waited for you until you arrived. Until you arrived, while I'm speaking, before I leave. ठीक है. अच्छा, क्लास ऑफ टाइम है ना ये, अब आप लोग लाइक थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड इन योर क्लास, ये आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं देंगे, 8 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग. कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आपको टाइम का सेंस देंगे. ट्राई टू ट्रांसलेट देम इनटू उर्दू, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. आई वेटेड फॉर यू अंटिल यू अराइव, जब तक आप नहीं आए थे मैंने आपका इंतजार किया. जब तक इज गिविंग यू एंड शोइंग यू द टाइम, द सेंस ऑफ टाइम. ठीक है. डोंट टॉक व्हाइल आई एम स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा हूँ या बोल रहा होता हूँ. ठीक है. यस, सारे while I am speaking. I will text you before I leave. ठीक है. before I leave is basically मेरे जाने से पहले आपको टाइम गिवन है. गेटिंग द सेंस क्लास प्लीज? समझ आ रही है आप लोगों को? क्लास दे से दैट I'm not praising myself, but one of my teachers told me that if you are, creating confusions among the minds of your students, so it means के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं बात समझ आ रही है और स्टूडेंट को समझने की ट्राई करें. सो आई नो देयर आर डिफरेंट कंफ्यूजन्स दैट आर गोइंग ऑन इन योर माइंड, बट वी विल बी गोइंग थ्रू देम. ठीक है. Okay, so the next one is adverbial clause of place. So they tell you about the and give you the sense of place. जगह का आपको सेंस देता है. फॉर एग्जाम्पल सेट वेयर, आप लोग बता सकते हैं बाय द वे क्लास, दे आर इजी. वेयर यू लाइक, आई फाउंड माई कीज, वेयर आई हैड लेफ्ट them, you can stay where it is safe. Where you like. अच्छा क्लास, अब देखें ये वियर को हमने एडजेक्टिव में भी यूज किया था, अगर आप लोग को याद हो. उसका सेंटेंस क्या था? आई स्टिल रिमेम्बर द डे, सॉरी, आई स्टिल रिमेम्बर द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट. अब वहां जो है ना आपके प्लेस की मॉडिफिकेशन हो रही थी, सो दैट्स व्हाई वी सेड कि इट वाज द एडजेक्टिव क्लॉज. यहाँ आपको प्लेस लाइक स्पेसिफिक प्लेस का सेंस दे रहे हैं कि सेट वेयर यू लाइक. ठीक है. वेयर आई हैड लेफ्ट देम, वेयर इट इज सेफ. ठीक है. हिफ्सा, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. फातिमा, मानूर, why you people are not participating? यस, इससे पहले वाली टाइम की एग्जांपल्स थी. ठीक है क्लास, आगे जाते हैं जी आपके एडवर्बल क्लॉज ऑफ रीजन की तरफ. So they will be telling you about the reason. ठीक है. For example, I stayed home because it was raining. ठीक है. He did not come as he was busy.
ठीक है, she is crying since she lost her toy. We class 1 minute for Azan, please. Okay, class. So in these sentences, we are being told about the reason. I stayed home because it was raining. Now you people can ask me कि मैम ये because तो हमारा subordinate conjunction है and it is not a complete sentence. But if you remove because a subordinate conjunction from this clause, the sentence still is complete. It was raining. ठीक है, he did not come as he was busy. So as he was busy is telling you the reason, the cause. She is crying since she lost her toy. Why she is crying? Because she lost her toy. So they are called as adverbial clause of reason or adverbial clause of cause, basically. Got it? Should we move towards the next one, class? Please let me know. Okay, so the next one is adverbial clause of purpose. In this sentence, basically in this type of clause, we are being told about the purpose. For example, she studies hard so that she may succeed. पर्पस क्या है आप लोग मुझे बता सकते हैं? ठीक है, he works hard in order that he may buy a car. ठीक है, so in the first sentence, so that she may succeed is a purpose. Someone is studying hard for what purpose? For this purpose. And he works hard in order that he may buy a car. So this is a purpose, that why he is working hard for this specific purpose. So this sentence would be called as adverbial clause of purpose. The next one is adverbial clause of condition. सो कंडीशनल सेंटेंसेस को आप लोग जरा माइंड में रखें. Conditions are given. For example,
I'll help you if you need me. ठीक है. I will go if it does not rain. I will buy this book if it is available. So ये आपके पास है एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंडीशन, जहां आपको कंडीशंस गिवन हो. ठीक है. ओके. इफ यू नीड मी, if it does not rain, and if it is available. Okay, class. So the next one is adverbial clause of result. ठीक है. और उसके मैं sentences I'm not going to write it over here. I am saying the sentences, you need to identify them. The first sentence is he was so tired that he fell asleep. Adverbial clause of consequence. Consequence means result. Of result. He was so tired that he fell asleep. ठीक है. The next one is the film was so interesting that I watched it twice. The film was so interesting that I watched it twice. If भी used होता है, unless भी used हो सकता है. ठीक है. लेकिन जिस सेंटेंस में यूज होता है वो आपको बिल्कुल समझ आ जाती है कि यहाँ जो है ना वो कंडीशन गिवन है. ओके. द नेक्स्ट सेंटेंस इज he spoke so fast that nobody understood. He spoke, yes, ये रीजन भी हो सकता है. He spoke so fast that nobody understood. ठीक है. The last sentence for it is she was so excited that she screamed. She was so excited that she screamed. ठीक है क्लास. ओके. दैट की यूसेज अब आप लोगों को लाइक समझ आ रही होगी एडजेक्टिव क्लॉज में और एडवर्बल क्लॉज में. ओके. द नेक्स्ट वन इज एडवर्बल क्लॉज ऑफ comparison. Very important class, very important related to your paper. Let me tell you the example first. She is taller. इसमें इन सेंटेंस में क्लास बेसिकली कंपैरिजन होता है. Than I am. ठीक है. He spends more money. ठीक है. He spends more money than he earns. मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें than की यूसेज होती है. ठीक है. या इसमें वो आपके सिमिलीज भी यूज हो सकते हैं क्लास. ही इज एज ब्रेव एज अ लायन. ठीक है. और इसके साथ साथ ये सेंटेंसेस भी आपके आ सकते हैं. द मोर, कंपैरिजन है. द मोर यू स्टडी, द मोर यू लर्न. इसमें क्लास बेसिकली इसको हम कहते हैं सेंटेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन, कि जहां आप यानी कि इक्वल बैलेंस कर रहे होते हैं चीजों को. ठीक है. इसमें फिर ये सेंटेंस भी आ जाते हैं कभी कभार. द फास्टर यू रन, अगेन प्रोपोर्शन. द सूनर यू विल अराइव. ठीक है. लास्ट सेंटेंस ही लुक्स एज इफ ही हैज सीन अ डेविल.
एज की यूसेज हो रही है, देन की भी यूसेज हो सकती है। ठीक है, और सेंटेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन भी आपके इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा जी, क्वेश्चंस देखते हैं आपके। इसमें आपका आ जाएगा ये वाला, द सूनर, एज इफ के बाद जो भी मैम, रिलेटिव क्लॉज, टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, रिजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव, मैम रिलेटिव एडवर्बियल क्लॉज, टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव। ठीक है मरियम, गॉट योर क्वेश्चन, वेट मैम, जस्ट 10 हो गया। नहीं, देन के बाद जो भी आपका पार्ट होगा ना वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। मैम कंपैरिजन का अगेन बता दें। ठीक है टीचर, ये रिजल्टेंट फॉर्म नहीं बन रही, कंपैरिजन कैसे हो इन सेंटेंस में? विच वन महानूर, विच वन यू आर आस्किंग अबाउट? इन सेंटेंसेस में हम कंपैरिजन यूज नहीं करें। इन सेंटेंसेस में हम, इसमें बेसिकली दो एस्पेक्ट्स हैं, या तो कंपैरिजन करते हैं या हम सेंटेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन की बात करते हैं। कि अगर आप पढ़ेंगे तो इक्वल बैलेंस आपको क्या हो जाएगा, आप ज्यादा सीखेंगे। इन सेंटेंसेस को कहते हैं हम सेंटेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन। इनको हम कंपैरिजन का नहीं कहेंगे, लेकिन प्रोपोर्शन वाले सेंटेंसेस भी आपके एडवर्बल क्लॉज में आते हैं। ठीक है, okay class, so let us move towards the some sentences now. ठीक है, and they would be including your all types that we have covered today. ठीक है, अभी sentences हम करते हैं। Okay, so the first sentence is she sings better than her friend. टाइप बताएं क्लास, कौन सी टाइप हम यूज कर रहे हैं? जस्ट वन वर्ड में टाइप बताएं, कंपैरिजन। ठीक है, ओके, आप लोग के आंसर्स कहाँ हैं? कंपैरिजन, ठीक है, ओके। She is not as strong as her brother. Comparison, ठीक है, okay. The next sentence is, the more you think, the more you destroy the things. The more you think, comparison, comparison कैसे हुआ? The more you think, the more you destroy the things. This is proportion class. This is not result. This is not comparison. This is proportion. ज्यादा सोचेंगे ज्यादा चीजें खराब होगी, दोनों सेंसेस इक्वल होंगे। इनको हम मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, प्रोपोर्शन, जहां आपके पास वो डिवीजन फॉर्म होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन इंग्लिश में आपका प्रोपोर्शन मीन्स कि किसी चीज को अगर आप इक्वल बैलेंस करते हैं, सो वो आपका सेंटेंस बन जाता है प्रोपोर्शन का। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ओके लेट मी थिंक। अच्छा, अभी आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कौन सा क्लॉज है, और साथ आप लोगों ने टाइप भी बतानी है। ठीक है, टेक योर टाइम, बट यू नीड टू टेल मी द क्लॉज along with the type of the clause. The sentence is, she is so clever that she solved the puzzle quickly. She is so clever that she solved the puzzle quickly. Should I go for should I go for the options class? Let me know. Any two options? Okay, so let me think about the options. The sentence is, she is so clever that she solved the puzzle quickly. Is it an adverbial clause of result or adverbial clause of condition? Adjective तो था ही नहीं। Adverbial clause of result। वो इतनी चालाक थी कि उसने क्या किया, रिजल्ट हमारे पास क्या था, पजल जल्दी से उसने सॉल्व किया। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, she wears glasses so that she can see clearly.
Adverbial clause of purpose or adverbial clause of result. She wears glasses so she can see clearly. ठीक है, purpose ठीक है, okay. The next sentence is, let's build a house where the view is beautiful. Let's build a house where the view is beautiful. Let me give you the options. Adverbial clause of place, adverbial clause of condition. Where the view is beautiful. ठीक है, so it was the place. Okay. The next sentence is, he was smiling while she was dancing. He was smiling while she was dancing. Adverbial clause of place, adverbial clause of time, adverbial clause of comparison. उर्दू में ट्रांसलेट करें क्लास, कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? ट्रांसलेट करें फिर मुझे बताएं. He was smiling while she was dancing. It is basically adverbial clause of time. ये कंपैरिजन तो नहीं हो रहा ना? कंपैरिजन तब होता क्लास जब दोनों सिंग कर रहे होते, दोनों डांस कर रहे होते और हम उनकी कोई क्वालिटी बता रहे होते कि ही इज डांसिंग बेटर देन हर. ठीक है, ही डज नॉट डांस एज शी डांसेस. ये कंपैरिजन होता. ठीक है, ये आपको टाइम के बारे में बता रहे हैं कि वो जो है वो वाइल वाइल का मैंने आपको जब कर रहे थे वर्बल क्लास ऑफ टाइम, तो उसमें मैंने आपको बताया कि वाइल की जो कंजंक्शन की यूसेज होगी तो फिर आप लोग समझ जाया करें कि दिस इज एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम. ठीक है, जिस तरह हमने किया था डोंट टॉक वाइल आई एम स्पीकिंग. सिंपल. द ऑडियंस स्टूड व्हेन द सिंगर फिनिश्ड. द ऑडियंस स्टूड when the singer finished. Options are adverbial clause of time or adverbial clause of place. ठीक है, okay. It was of time. Okay, the next is the last one maybe. Okay, so the next one, let me think. Tell me the reason why you are angry. Tell me the reason why you are angry. Should I go for the options class? Adverbial clause of. This is very easy, by the way. I'm not like going for the options. Tell me the reason why you are angry. Adverbial clause of reason. ठीक है, दिस वाज द एडवर्बल क्लॉज ऑफ रीजन. रिलेटिव एडवर्ब इसमें यूज हुआ था. मरियम, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो डिटेल में आपको मैं कल समझाऊंगी. ठीक है, बिकॉज इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड. ठीक है, सो इंशाल्लाह कल हम अपनी क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे. ओके क्लास, यू पीपल वांट मी टू मूव टूवर्ड्स नाउ योर प्ले एंड poems because we are almost done with the grammar. लेकिन कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग के रहते हैं and some other things are also there. So you want me to go towards play or the remaining ? 。   。  poems?
यस, यस, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि मैम अब पॉइम्स को थोड़ा सा छोड़ दें, ग्रामर पर आए। फिर मैंने पॉइम्स जो है वो छोड़ दी थी। आई थिंक वी हैव डन, लाइक वी आर डन विद द 2 पॉइंट्स। ठीक है, हम इस तरह करते हैं, कल कोई पॉइम कर लेते हैं। प्ले का ये है क्लास के, प्ले का जब, लाइक गिव मी 1 मिनट टू एक्सप्लेन इट। प्ले का ये है कि आई वुड बी टेलिंग यू पीपल द प्ले इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। ठीक है, और उससे रिलेटेड लाइक देयर आर 6 to 7 क्वेश्चंस। वो मैं क्वेश्चंस को लेके उसमें से आपको प्ले में, स्टोरी में जब मैं आपको बताऊंगी तो उन क्वेश्चंस को भी मैं कवर करूंगी। आपके कॉलेज के पेपर्स में, आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, लाइक वेन एवर यू आर अपियरिंग इन योर बोर्ड एग्जाम्स, उन्हीं 6 to 7 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू प्ले। ठीक है, वो आप जो है ना, वो लाइक यू नीड टू लर्न देम बाय हार्ट। तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ समझा दूंगी, लेकिन उससे पहले क्लास, वन थिंग दैट आई नीड फ्रॉम यू पीपल, कि आप लोगों ने प्ले की एक दफा रीडिंग करके आनी है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम फिर इस तरह कर लेते हैं कि वो जो प्ले है वो नेक्स्ट वीक पर हम कर लेते हैं, तब तक आप लोग टाइम मिल जाएगा आपको, उसकी रीडिंग कर लें। रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आई वांट यू पीपल टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड, बट एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू द रीडिंग, के रीडिंग मतलब इस स्टोरी में क्या है, एटलीस्ट आपको करेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी स्टोरी और जो भी है वो मैं आप लोगों को यहाँ नरेट कर दूंगी, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस भी समझा दूंगी। बुक में है आपका 14 प्ले, द लास्ट वन। ठीक है, ओके क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज देन। अल्लाह हाफिज।